My friends, today the Lord's light is shining upon you मेरे दोस्तों, आज परमेश्वर की ज्योति आप में प्रकाशित हो रही है because you've come seeking Him. क्योंकि आप उसकी खोज में आए हैं। Today, let us hear from His wonderful voice from Proverbs 35. आइए आज परमेश्वर की अद्भुत वाणी को हम नीति वचन 30:5 से सुनते हैं, It says, every word of God is flawless. जो कहता कि परमेश्वर का हर एक वचन ताया हुआ है। He is a shield to those who take refuge in Him. वह अपने शरणागतों की ढाल ठहरा है। Truly, the words of God are flawless. सचमुच परमेश्वर के वचन तो ताए हुए Not हैं। one word that He speaks will fall to the ground without working in us. उसके कहे हर एक वचन हमें कार्य किए बिना व्यर्थ नहीं जाएंगे। Not one word will go unfulfilled. एक भी वचन पूरा हुए बिना ना रहेगा। When He speaks to you from the Word of God and it burns in your heart, जब वह अपने वचन के मार्फत आपसे बात करता तो वह आपके मनों में प्रज्वलित होता। rejoice and receive it, for that blessing has come to you. आनंद के साथ में उसे ग्रहण करिए, क्योंकि वह आशीष आप तक आई है। After that, there is no doubt, there is no fear. क्योंकि उसके बाद कोई संदेह नहीं, कोई भय नहीं। Yes, sometimes it might take time to come into our lives, हाँ, कभी कभी इसे हमारे जीवन में आने में समय लग सकता है, but it will surely come, my friends. लेकिन मेरे मित्रों, यह अवश्य ही आएगा। So with that hope, we should rejoice that the Lord has blessed us by that word आशा में हमें प्रसन्न होना चाहिए कि प्रभु ने अपने वचन द्वारा हमें आशीष and दी take है, it for our own life. और इसे अपने स्वयं के जीवन के लिए ले लें। And this verse also says that He is a shield to those who take refuge in Him. वचन यह कहता कि जो लोग उसकी शरण में आते हैं वह उनके लिए ढाल है। What is taking refuge in Him? उसमें शरण लेने का अर्थ क्या है? It is receiving and hearing the voice of God. यह तो परमेश्वर की वाणी को सुनना और उसे ग्रहण करना है। Receiving these words. इन वचनों को ग्रहण करना। Only when you receive these words, you are really taking refuge in God. जब आप उसके वचन ग्रहण करते तब आप उसमें सचमुच ठिकाना पाते It's हैं। not just going into a building and thinking you're safe. किसी इमारत में जाकर खुद को सुरक्षित समझना काफी नहीं है। It's not just going to a meeting and believing that you've taken refuge. किसी सभा में जाना और विश्वास करना शरण लेना नहीं है। It is receiving these words of God. यह तो परमेश्वर के इन वचनों को ग्रहण करना This है। word protects you ये वचन आपको सुरक्षित रखता and है brings every blessing according to that word. और उस वचन के अनुसार आपको हर एक आशीषें प्रदान करता है। That is taking refuge in God. यही परमेश्वर में शरण लेना है। Even at home, they'll say you're safe only when you're in the house. घर में भी लोग यह कहते हैं कि जब तक तुम घर के अंदर हो सुरक्षित हो, Because you're safe from all the other outside bad influences. क्योंकि घर में ही आप बाहर के सभी बुरे प्रभावों से सुरक्षित रहते हैं। The children are safe from the bad influences from the streets. घर में ही बच्चे सड़कों में पाए जाने वाले बुरे प्रभावों से बचे रहते हैं And they are safe from the bad ways that they learn in this world. और दुनिया में सीखी जाने वाली बुरी आदतों से भी वे सुरक्षित रहते हैं, Because at home they learn the good things from their parents. क्योंकि घर पर ही बच्चे अपने माता पिता से अच्छी बातें सीखते हैं। Just like that, the words of God is the best influence in our life and keeps us safe. ठीक इसी तरह परमेश्वर का वचन भी हमारे जीवन में सबसे अच्छा प्रभाव डालता और हमें सुरक्षित रखता It है। becomes a shield to us. यह हमारे लिए ढाल बन जाता है, Protects our life. हमारे जीवन की रक्षा करता, Protects our path. हमारे मार्गों को सुरक्षित And रखता। His word is flawless, my friends. और मेरे मित्रों, परमेश्वर का वचन तो ताया हुआ Shall है। we praise Him and receive a heart to always receive this word? क्या हम उसकी स्तुति करें और ऐसा मन प्राप्त करें जो सदा उसके वचन को ग्रहण करे? Thank you, Lord, for giving us a heart to look and yearn for your word. हे प्रभु, हमें आपके वचन की खोज और लालसा करने वाला मन देने के लिए धन्यवाद। Thank you, Lord, for a thirsty heart for your word. हे प्रभु, आपके वचन के प्रति प्यासे मन के लिए धन्यवाद। Master, we pray that we will hear your voice. स्वामी, हम प्रार्थना करते कि हम आपकी वाणी को सुन सकें, Even when we read the Bible, यहाँ तक कि बाइबल पढ़ते समय speak भी। to us, Lord. प्रभु, हमसे बात करिए। Let your words come to life within us. आपके वचन हमारे भीतर जीवंत हो उठें
And as we receive, Lord, let those words bring miracles. और प्रभु जब हम वचन ग्रहण करें तो अद्भुत काम हो। Let those words be our blessing. यह वचन हमारे लिए आशीष बन जाए। Lord, let those words protect us हे प्रभु यह वचन हमें सुरक्षित रखे from every evil power, हर एक बुरी शक्तियों से, from every bad influence, हर एक बुरे प्रभाव से, from every sickness, हर एक बीमारी from से, every harm of man. मनुष्य द्वारा लाए हर एक नुकसानों से। Let your flawless word protect us, Lord. प्रभु आपका ताया हुआ वचन हमारी रक्षा करे। Let it protect our soul. यह हमारे प्राणों की भी रक्षा करे। Thank you, Lord, for your mighty word is with us. धन्यवाद प्रभु कि आपका सामर्थी वचन हमारे साथ है। Help us to always run and take refuge in it. हमें सदा इसमें शरण लेने और इसका सहारा लेने में सहायता करें। Even now, let your word perform wonders for your children. इसी घड़ी आपका वचन आपके बच्चों के जीवन में अद्भुत काम करे। In Jesus' name. यीशु के नाम से Amen. आमीन। God bless you, my friends. Like this video and subscribe. परमेश्वर आपको आशीष दे मेरे मित्रों। इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब Send it करें to all your friends and family. और अपने सभी दोस्तों और परिवारों को भेजें। I want you to bring blessings upon your children. लेकिन मैं चाहता हूं कि निश्चय आप अपने बच्चों पर आशीष लेकर We आएं। have a wonderful plan called the Young Partners Plan for your children to be blessed. आपके बच्चों की आशीष पाने के लिए हमारे पास बहुत ही अद्भुत प्लान है जिसका नाम है यंग पार्टनर प्लान, युवा सहभागी योजना। Every day we pray for the young partners in the prayer tower. हर एक दिन प्रेयर टावर में हम यंग पार्टनर्स के लिए प्रार्थना करते हैं। Through the offering that you give in the name of your child will become a blessing to millions of people. आप अपने बच्चे के नाम से जो भी भेंट देते हैं ये तो सच में लाखों लोगों के लिए आशीष होगी। So you can support Jesus Calls तो आप जीसस कॉल्स को सपोर्ट कर सकते हैं to be a blessing to millions of people. कि लाखों लोगों के लिए आशीष हो जाए। Enroll your child as a young partner. अपने बच्चों को यंग पार्टनर के रूप में एनरोल Let कीजिए your child get all the blessings as he or she grows up. और जैसे कि आपके बच्चे बड़े होते हैं वो सारी आशीषों को प्राप्त करें। And support every month in the name of your daughter आपकी बेटी के नाम में आप हर एक महीना सहायता करें or son. या बेटे के नाम पर। God's blessings will be upon your child. और परमेश्वर की आशीष उस महीने आपकी संतान पर होगी। Here's how you can do it. आप इसे इस तरह से कर सकते हैं। सो आज ही www.jesuscalls.org पर पधारें और दिए गए QR कोड को स्कैन करें। हमारा ईमेल आईडी है ypp@jesuscalls.org या निम्न नंबर पर संपर्क करें 984009000477। आज ही युवा सहभागी में पंजीयन कराएं और अपने बच्चों के जीवन में ईश्वर की महान आशीषें लेकर आएं।